करो परम सन्मान योग। चबर छत्र तख्त दे मालक सरवरे कायनात दे रहबर दो जहाना दे वाली शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर संध्या वेले दे इन्हां पावन दीवाना विच जुड़ के सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दा संपूर्णता दिवस और धन धन गुरु रामदास पातशाह जी सतगुरां दा ज्योति जोत समाउण दिहाड़ा इन्हां दो इतिहासिक दिनां नूं मुख रखदिआं बड़े प्यार और बड़ी एकाग्रता नाल सतगुर की पावन बाणी दे कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सो। आओ साध संगत सतगुर की अमृत बाणी और इतिहास विचों सतगुरां दियां बख्शिशां नूं सतगुरां दियां महरमतां नूं आपां जानण दा यतन करना है। बेअंत बख्शिशां महरमतां उस करते परमात्मा दियां इस कुदरत दे अंदर हर वक्त हर समय वरतदियां ने। जिवें सूरज दियां किरणां इस धरती ते पैंदियां ने ते जेड़ा बाहर खुले आसमान दे अंदर आ जाए उही इस तपश नूं महसूस कर सकदा है। जिवें चंद्रमा दियां रिश्मां धरती ते पैंदियां ने उही मनुख इन्हां रिश्मां दी ठंडक नूं मान सकदा है जेड़ा बाहर कुदरती वरतारे विच खुले तौर ते आके वरतदा है। इसे तरह सतगुर दियां रहमतां नूं भी उही मान सकदा है जेड़ा अपना मन सतगुरां दे चरनां दे विच अर्पण कर दिंदा है। सतगुरु धन गुरु रामदास पातशाह जी का जीवन और धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपूर्णता इन्हां दो दिनों के बाबत आपां रल मिल के कुछ विचारां साझियां करनियां ने। आओ आप जितने तन सतगुरु की गोद विच जुड़ बैठे हो करो किरपा सतगुरां की बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शेक्सपीयर का एक नावल है जिंदा नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना शहर के दो जेंटलमैन मनुखों का जिक्र है उनके अंदर। दो इंसान जिहड़े अपने आप नूं सब कुछ समझते ने मनते ने भी साडे वर्गा संसार ते होर कोई भी नहीं। अचानक एक दिन दोनों की मुलाकात होंदी है ते उन्हां दोनों दे नाल उन्हां दे नौकर ने जिहड़े हर वक्त उन्हां दे नाल रहिंदे ने। राह विच जांदियां एक मालक जिहड़ा है वो दूजे दे नौकर दे नाल कोई गलबात शुरू कर दिंदा है।
ਤੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾत ਦੀ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, 2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੋ, ਨਿਰਾਸ਼ੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਮੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗੋ ਦਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਵੋ ਦਾਨ, ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਾਤ ਮੰਗ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। 27 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 27 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
27 साल के अंदर एक भी ऐसा वाकया नहीं जिदन धन गुरु रामदास पातशाह जी ने धन गुरु अमरदास पातशाह जी के सामने कोई जवाब दिता हो, क्योंकि सेवक वही है साध संगत जी जिहड़ा गुरु के हुक्म नूं सदा मनदा है। गुरु नानक साहब जी के पावन बचन तुसी आसा की वार विचों पढ़दे हो। साहब कहते ने एक सेवक गुरु के चरणों विच आया, उन्हें अपने मालक के चरणों विच नमस्कार की, नमस्कार करके अपने मालक के चरणों विच कहन लगा भी मैं तुहाडे चरणों दे विच आया, हुण जो तुसी कहोगे मैं वो मन्नांगा, मैं तुहाडे हुक्म विच रह के मैं सच की कमाई करन आया, मैं इत्थे अध्यात्म कमान आया, मैं रब नाल मिलन आया। हुण गुरु के चरणों विच रोज़ उठदा है सवेरे ते अपने गुरु नूं सलाम करदा है, नमस्कार करदा है, मत्थे टेकदा है, ते जदों गुरु कोई गल कहंदा है करन दे लई फिर कोई ना कोई तरतीब सोचता है भी मैं किवें अपने गुरु की गल नूं मन्नण तो इनकारी हो जावां। मत्थे बड़े टेकदा है, रोज़ टेकदा है, सवेरे उठदिआं ही पैरां दे विच डिग पैंदा है, सारा दिन पता नहीं किन्नी वारी डंडौत करदा है लम्मे पै के, पर जदों गल आंदी हुक्म मन्नण दी उदों कोई ना कोई ऐसी गल अपने गुरु के सामने कर दिंदा भी मैनूं गुरु का हुक्म मन्नना ही ना पवे। जिवें परवाना जी ने एक बड़ी प्यारी घटना लिखी है, वो कहंदे कोई सज्जन इस तरह किसी इंसान दे कोलों गया, उनके कोलों गुर सीखण गया सी भी भगती किवें कीती जाए, ते नाले कहंदा भी मैं जो तुसी कहोगे मैं वो मन्नांगा। सुभावक उन्हें आख्या भी कोई गल नहीं, तू आया है, साडा ते काम ही लोगों नूं सीधे राह ते पाना है, तू आया ते तेरा आया भी इत्थे प्रवान है। कुदरती उस रात बड़ा मीह पै गया, मीह पैण दे नाल जिहड़ी उस फकीर की छन सी वो चोन लग पई। हुण गुरु अपने चेले नूं कहंदा भी जा छत ते चढ़, इस छत ते चढ़, मैं तेनों थल्लिओ मिट्टी फड़ाना ते जिथों छत वगदी है ना उत्थों लेप दे, पानी रुक जाएगा। ये हुण कहंदा मालक गुरु के सामने भी मैं हुण छत ते चढ़ां वगदे मीह विच, बड़ा औखा काम है, मीह वरदे विच मैं छत ते किवें चढ़ा। अपने गुरु नूं कहंदा गुरु जी ये किवें हो सकदा है, मैं छत ते चढ़ जावां ते तुसीं थल्ले होवो, मैं उच्चा हो गया तुसीं नीवें थां ते हो गए, ये किवें भी चेला उच्चा हो जाए ते गुरु थल्ले रह जाए, ये काम मेरे कोल नहीं होना, मैं नहीं छत ते चढ़ सकदा। उन्हें जुगत बना ली भी बाहर निकलना ना पवे। गुरु ने विचारे ने किसी तरीके नाल दूजे नूं बुला के काम कराया। सुभावक ही कुछ दिन लंघे, ये अपने गुरु के चरणों के विच नमस्कारां करता रहा, पर एक दिन फिर सबब बनिया। गुरु ने आख्या भी जा दूर लकड़ा वढ़ के लिया, जंगल विच जा, लकड़ां दी तोट आ गई। उन्हें फिर सोचन लगा भी दूर जंगल विच जावां किते कोई जानवर ना मिल जाए, किते ऐसा ना होवे मैं मारिया ही ना जावां। फिर कहंदा अपने गुरु नूं कहन लगा मैं इन्नी दूर जंगल विच जावां ते तुसीं इत्थे हो, इन्नी दूरी मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदी, मैं ते तुहाडे तो एक खिन भी दूर नहीं रह सकदा, मैं ते इन्नी भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकदा। तुसीं कहो भी इत्थों बाहर निकल जा, तुसीं कहंदे हो जंगल विच जाके लकड़ां लैके आओ, इन्नी दूरी मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होनी, मैं नहीं लकड़ां वड्ढण वास्ते जंगल विच जा सकदा। गुरु ने फिर आख्या कोई नहीं, बच्चे का भाव है भी कोई गल नहीं, इहदे अंदर दी भावना है। सुभावक ही सवेर चढ़ी ते कोई सज्जन सोहने 36 प्रकार के पकवान बना के लियाया। उन्हें पकवान बना के लियाए सामने रखे, कहन लगे गुरु जी अज पकवान बनाए ने 36 प्रकार के पकवान, तुसीं छको। ते इन्हें अपने चेले नूं आवाज़ मारी भी बेटा इधर आ। वो आया, कहन लगे देखो आप 36 प्रकार के पकवान बड़ी श्रद्धा नाल बना के लियाया है, ये पकवान आपां छकने ने। हुण जदों इन्नी गल आखी ना, कहंदा लै गुरु जी ये अखा तुहाडा मैं थोड़ा मोड़ांगा, की होया जे मैं जंगल विच नहीं गया, की होया मैं जे छत ते नहीं चढ़िया, पर आ अखा नहीं मैं तुहाडा मोड़ना। सच है साडी अवस्था ये है। धन गुरु रामदास पातशाह जी भाई जेठा जी के रूप में 27 साल सेवा करते रहे ने गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में। पर थोड़ा जिहा सुरत टिका के सोचो, 7 साल की उम्र धन गुरु रामदास पातशाह जी की, जदों उन्हां दे माता पिता दोवें संसार तो चले गए।
रिश्तेदारां ने इस करके मूँह नहीं लाया, नेड़े नहीं रखिया, नाल प्रतिपालना नहीं की भी कौन इनू संभालेगा। धन गुरु रामदास पातशाह जी, भाई जेठा जी लाहौर चूना मंडी की धरती ते रहिंदे ने, नानी कोलों रहन लग पई। एक टुट्टा जिहा घर जिंदे विच रहिंदे ने, नानी उत्थे ही उहनूं कोई ना कोई कार विहार वेखण लग पई। किसी तरीके नाल मेरी ये जिंद जान, मेरे ये बच्चों की ये यादगार, मेरा ये पुत्र संसार ते जीवन यापन कर सके। पर 7 साल की उम्र हुण घर तो बाहर जेठे ने खेडण भी जाना ते लोगों ने अपने बच्चों को घर बुला लेना, कहन लगने भी ये इंसान, ये बच्चा बड़ा अपशगन है, ये जमद्या मां नूं खा गया, 7 साल की उम्र विच प्यो नूं खा गया, इनकी परछाई भी माड़ी है, इनदे नाल नहीं खेडना तुसीं। धन गुरु रामदास पातशाह जी 7 साल की उम्र हुण इकल्ले ने। नानी इस गल नूं बर्दाश्त ना कर सकी ते बासरके की धरती ते लैके आ। बासरका अमृतसर तो तरन तारण तो थोड़ी दूर, ये धन गुरु अमरदास पातशाह जी का जद्दी पिंड सी बासरका। धन गुरु अमरदास पातशाह जी गोइंदवाल साहब जी की धरती ते जदों सतगुरां ने गुरु अंगद देव पातशाह जी ने किरपा कती, गुरता गद्दी की जिम्मेवारी दी, गोइंदे खतरी पासों गोइंदवाल साहब जी की जिहड़ी धरती सी, बकायदा गुरु अमरदास साहब जी ने थां खरीद के इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने सोहना स्थान बनाया। धन गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु अंगद साहब पातशाह जी के कहण मुताबक खडूर साहब नूं छड्ड के ते गोइंदवाल साहब जी की धरती ते चले गए। नानी हुण इत्थे बासरके की धरती ते अपने दोते नूं घुंगणियां उबाल के, छोले उबाल के दे देने ते उन्होंने बेचना। धन गुरु रामदास पातशाह जी ने इतिहास आपां सारे जानते हैं। मैं सिर्फ जिस गल वाल आना है, जिहड़ी गल आपां समझनी है, जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं, आवत है जाके भीख मांगन, भिखारी दीन देखत अधीनो, निराशो ना बिडार है। आवत है जाके द्वार आशा के बिडार स्वान, अंत करुणा के टोर तुक ताहे डार है। पायन की पन ही रहत पर हरि परी, ताहु काहु काज उठ चलत समार है। छाड़ अहंकार छार होए गुरु मार्ग में, कब हूं क्या दया के दयाल पग धार है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, कुत्ता स्वान वो जदों किसी के दर के अगे जाके खलोंदा है, तुसी वेखो कदी तजर्बा करके वेखिया जी, उन्होंने तुसी एक बारी डांट दिओ, डंडा दिखा दिओ, वो परां नूं जाके फिर मुड़ के आ जाएगा। उनके अंदर एक लालच है भी ये रोटी खान लगा है तो बुरकी तोड़ के मैनू पाएगा ही पाएगा। हुण जदों रोटी खान बहिंदा है, बंदा सामने आके खलो जाता, वो डांटदा भी है, झिड़कदा भी है, डंडा भी दिखाता है, परां नूं जाके फिर मुड़ के आ जाता है, क्योंकि अंदर एक आस है। तो ख्याल करियो किन्नी देर ललचाइयां जी अखां नाल जदों वेखदा है, फिर रोटी खांदे नूं तरस आ जाता, बुरकी तोड़ के ते उहदे अगे भी पा दिंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, जिवें सवान आस करके आया तो उनकी आस बिरथ ही नहीं गई, उन्होंने अंत विच एक टुकड़ा रोटी का मिल ही गया। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं, जिवें गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद विच जाई गए, धार्मिक स्थान ते जदों अंदर एंट्री करी गई है तो जोड़े बाहर ला के बंदा फिर अंदर दाखिल होता है, ऐसा नहीं कोई जोड़ियां दे समेत अंदर आ जाए। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं, जिवें जोड़े बाहर लाई दे ने, इस तरह बंदिया जदों सतगुर के चरणों में आउना है, अपना अहंकार भी, अहंकार का चोला भी बाहर ला के आई, जे गुरु के चरणों विचों कुछ लैके जाना है। छाड़ अहंकार छार होए गुरु मार्ग में, छार का मतलब है मिट्टी, अहंकार छड्ड दे ते मिट्टी की तरह बन जा। जिन्हों बाबा जी कहते हैं, कबीर खाक ना फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड़ ना कोए, जी बंदिया पैरों तले मोया उपर होए। खाक नूं माड़ा ना आखो, ये ना आखो किते तन ते लग गई तो आखो भी ये मिट्टी बड़ी माड़ी। बाबा जी कहते हैं, वेख सारा जिंदगी तू पैरों के थले लताड़दा रहा है, तो जिदन मरिया बाबा फरीद साहब कहते हैं, तेनू मरे नूं भी ये नहीं थां दित्ती है, तेनू घर वालियां ने घर नहीं रखिया। जिन्हां लई सारी जिंदगी आशियाने तैयार करदा रहा, उन्होंने भी आख्या लै चलो। बाबा जी कहते हैं, जिस मिट्टी नूं निंददा है, वेख इसे मिट्टी ने तेनू अपने थले थां दित्ती है, इनू माड़ा ना आख। इहदा मतलब है जदों कोई निमरता विच जीण वाला मिल जाए, भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं, उन्होंने माड़ा ना आखी कदी।
बाबा फरीद साहब जी कहते ने उनके चरणों के विच जुड़ जाई, क्योंकि अंत वेले उन्हें ही तेनू थां देनी। हुण साहब जी ने जिहड़े बचन के बाणी के अंदर भाई जेठा जी धन गुरु अमरदास साहब जी के चरणों विच घुंगड़ियां वेचदियां बस सरके की धरती तो गोइंदवाल साहब जी की धरती ते आ गए। हुण वाकियात वेखना साध संगत जी, धन गुरु रामदास पातशाह जी सेवा भी करते हैं ते घुंगड़ियां भी वेचते हैं। असी संसार के अंदर जो साध संगत जी कोई कर्म करने ना, देखो कोई भी दुनियावी मनुख है, संसार का रिजक हर बंदे की पहली संसार के अंदर आस होंदी भी मैनू संसार का रिजक जोड़ा कभी थोड़े ना, इसलिए बंदा सारा दिन उद्यम भी करता है। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अमृत बाणी का हुक्म है। साहब कहते ने एक गल चेते रखी, आप गुरु रामदास जी के बचन पढ़ दिओ अमृत बाणी दे विचों, ते साहब जी कहते ने गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। पातशाह कहते ने उस सवेरे उठेगा, परमात्मा के अमृत नाम नू याद करेगा, इशनान करे अमृत सरनावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। एक सिख का जीवन है जिन्हों सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी अपनी पावन बाणी विच बयान कर रहे हैं भी सिख का जीवन की होना चाहिए। जे असीं संसार के पदार्थों नूं ते तरजीह दे दी तो जो समा आवे जीवन के अंदर कोई समा कमाई करन दा, सेवा करन दा, नाम कमाई करन दा, उदों असीं आखीए भी साडे कोल हुण समा कोई नहीं, थक गया टुट गया नहीं कर सकते। धन गुरु रामदास पातशाह जी का जीवन पढ़ लो। मैं बड़ी बड़ी बेनती करना होना संगत जी कि संसार के अंदर देखो अज साडे समाज के अंदर ना असी अपने बच्चों नूं जो परसनैलिटी डिवेलपमेंट बारे दसना होंदा ते असी कहने भी इन्हां नूं परसनैलिटी डिवेलपमेंट दीयां क्लासां लाओ भी ये परसनैलिटी किवें डिवेलप होंदी है। बड़ा कुछ जिहड़ा संसार विच उनके लिए बकायदा इन्ना पैसा खर्च करके उन्होंने क्लासां असी लाने भी बच्चा साडा सीख जाए भी इन्हें अपनी परसनैलिटी नूं इस समय अंदर किवें डिवेलप करना है, किवें अगे लैके जाना है, ये समाज नाल जीएगा किवें। धन गुरु रामदास पातशाह जी का जीवन पढ़ लिओ। मैं बड़ी बड़ी बेनती करना होना अपने बच्चों नूं इन्ना ही आखदी है भी धन धन गुरु रामदास साहब जी का जीवन पढ़ लो, पता लग जाएगा भी परसनैलिटी डिवेलपमेंट होंदी की चीज़ है। ख्याल करियो वो बच्चा जड़ा 7 साल की उम्र विच परछावां भी पैन लग्या, गवांढी कहते ने परछावां ना पै जांदा। अज धन गुरु रामदास साहब जी के चरणों के अंदर नाले घुंगड़ियां बेचते हैं, किरत तो बाद फिर गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में सेवा करते हैं। एक दिन टोकरी लैके जा रहे तो सुभाविक धन गुरु अमरदास पातशाह जी के महल उन्हां दा ध्यान पै गया तो बचन कहे कहन लगे गुरु अमरदास साहब जी नूं कि अपनी बच्ची भानी विआहण जोग हो गई है तो उन्होंने किसी वर का किसी बच्चे नूं वेखना शुरू करो, उन्हों का विआह जिहड़ा हुण कर देना चाहिए, उन्होंने उम्र विआह जोग हो गई है। जो इन्नी गल आखी तो धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा भी किहो जिहा होना चाहिए बालक, थोड़ा जिहा दसो तो सही। तो उस वेले धन गुरु अमरदास पातशाह जी के महल ने कोई गल आखी, कहन लगे भी आ जिहड़ा जेठा है ना घुंगड़ियां बेच के निर्वाह भी करता है, क्योंकि गुरु घर विच निरंतर सेवा करते पे ने ते गुरु चरणों दे विच सेवा भी करते हैं, बड़ा सादा सिंपल जीवन जिउंदे ने, इहो जिहा बालक होना चाहिए। तो धन गुरु अमरदास साहब जी ने एक बचन किया सुभाविक भी इहो जिहा ते फिर यही है। हुण ख्याल करियो जो इन्नी गल आखी धन गुरु रामदास पातशाह जी नूं भाई जेठा जी नूं अपने कोलों बिठाया तो जिस दिन बिठा के गल आखी होनी है बेटा जी असी अपनी बच्ची का विआह तेरे नाल करना चाहते हैं, तेरे घर विच कोई है जिहड़ा साडे नाल आके गल कर सके। धन गुरु रामदास पातशाह भाई जेठा जी अपनी नानी नूं लैके आए ने। मैं सोचना भी जिदन गुरु अमरदास साहब जी ने इन्नी गल आखी होएगी भाई जेठा जी सच विच धन गुरु अमरदास पातशाह जी के चरणों तो कितना कुर्बान गए होणगे। और दूसरी गल साध संगत की धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने वेख्या की है, गुरु अमरदास साहब जी ने की चीज़ वेखी। देखो आप बच्चों के विआह करने 3 चीज़ां बड़े ध्यान नाल वेखने आपां, उनका परिवार कैसा है, कारोबार कैसा है, ये चीज़ां आप वेखने ना भी बच्चे का परिवार के कुल किहो जी है।
कुल तो बाद उन्हां दा अपना परिवार का बिजनेस किहो जिहा, व्यापार किहो जिहा है, ते तीसरा ये वेखने भी ये जिंदे नाल असीं साग करना है, बच्चा किहो जिहा। तीन चीज़ां नोटिस हुंदियां ने, पर सब तो ज़्यादा साडा ध्यान हुंदा है भी परिवार किहो जिहा है ते कारोबार किहो जिहा है। धन गुरु रामदास पातशाह जी जो गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में प्रवान होए, धन गुरु अमरदास पातशाह जी के सामने भी ये तीन गल्लां आईयां होणगियां। जरूर गुरु के महल ने आख्या होएगा भी जिन्हों तुसीं चुनिया है ना तो इहदा परिवार किहड़ी कुल की गल करोगे, जिंदे माँ बाप नहीं सिर ते नानी कोलों रहिंदा है, घुंगड़ियां वेचदा है, जिंदे सिर ते अपने छत कोई नहीं, किहड़ी कुल की गल। क्योंकि कुल परिवार उनके तो ये जात पात वेखनी, परिवार वेखना, ये साडे समाज की एक रीत है। धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस रीत नूं तोड़िया। साहब ने आख्या नहीं भागवाने जिंदे नाल असीं अपनी बच्ची का लड़ लाना है, ये ना वेखो उनकी कुल किहड़ी है। ते सच विच गुरु अमरदास पातशाह जी अंदरों अंदर ही कहंदे भी होणगे भागवाने अज जिंदी कुल की गल करनी है, कल नूं जदों गुरु नानक साहब जी की किरपा होएगी इहदे उपर, इनकी कुल गुरु नानक की कुल करके जानी जाएगी। ध्यान देना गुरु रामदास पातशाह जी जिदन गुरु अमरदास साहब जी की दात गुरता गद्दी ते आसीन होणगे, गुरु नानक की जोत के वारस बनणगे, ते गुरु अमर रामदास जी की कुल किहड़ी बन गई, गुरु नानक साहब जी की कुल बन गई ना। जिहड़ी धन गुरु अमरदास साहब जी सोचते होणगे भी जिन्हों कहनी भी कारोबार कोई नहीं, इहदे अपने सिर ते छत कोई नहीं, सच विच गुरु अमरदास जी मन अंदर सोचते होणगे जिंदे अपने सिर ते छत कोई नहीं, सच विच एक दिन समा आएगा पता नहीं किन्ने निआसरियां नूं आसरा धन गुरु रामदास साहब जी देणगे। हकीकत ते साध संगत भट्ट एवें नहीं कहंदे, कहंदे जिह सतगुर सिमरंत, जिस सतगुर नूं सिमरन दे नाल याद करन दे नाल नैन के तिमर मिटै खिन, अखां दे अंदर दा हनेरा खिन विच मिट जांदा है। सच विच गुरमुखवा जिन्ना संसार दे अंदर असी अडंबरां विच जी रहे, साडियां अखां दा हनेरा ही है, साडियां अखां दे अंदर जोत रब ने दित्ती है, पर सच विच असी वेखने अपनी सियाणप नाल पए आ। जिदन इन अखां दे नाल असी वेखांगे पर जोत गुरु दी नाल वेखांगे, जिदन अखां शब्द गुरु दा होएगा, गुरु के उपदेश राही इन अखां नाल वेखांगे, उदन दृष्ट बदलेगी, संसार बदलेगा, संसार के अंदर दा रहन सहन बदलेगा, उदन बदलना है। ताई सतगुर ने बाणी विच भी आख्या, बचन साहब कहते नानक से अखड़ियां बियन जिन्नी डिसंदो मापरी, नानक जी वो अखां होर ने जिन्हां नाल परमात्मा रब दिसदा है। ते भट्ट जी कहते ने जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जिस सतगुर नूं सिमरिए ते दिनों दिन नाम दी रंगत चढ़े। भट्ट जी कहते ने जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जिस सतगुर नूं सिमरन दे नाल हिरदे दे अंदर दी तपश मिट जाए। पातशाह कहते ने जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नौ निध पावे। भट्ट कहते ने जिन्हों सिमरन दे नाल रिधियां सिद्धियां नौ निधियां मिलदियां ने। ध्यान देना उसे गुरु रामदास जी की गल कर रहे ने, जिस भाई जेठे नूं रिश्तेदारां ने आख्या सी कौन पालेगा इनू। भट्ट कह रहे ने जे इहदी संगत मिल गई, एक गल चेते रखियो, जे इहदी संगत मिल गई तो रिधियां सिद्धियां पिछे लगणगियां। रिध सिद्ध नौ निध पावे। पातशाह जी की भट्ट कहते ने सोई रामदास गुर बल्ले पन, मिल संगत धन धन करो। ऐसे गुरु नूं संगत विच मिल के धन आखो धन आखो, जिन्हें 27 साल गुरु के चरणों विच सेवा कमा के ते कदी एक बचन भी उच्चा नहीं बोलिया। जिदन गुरु अमरदास पातशाह जी ने परीक्षा लई सी अखीरली, थड़े बनाने की घटना आप सारे जानते हो। तीजे दिन धन गुरु अमरदास पातशाह जी का जिहड़ा दूजा घर का जवाई सी भाई रामा, बीबी दानी दे घर वाला, दो बच्चियां सन गुरु अमरदास साहब जी दियां, बीबी दानी ते बीबी भानी। बीबी दानी वड्डी सी, बीबी भानी छोटी सी। बीबी दानी दे घर वाला सी भाई रामा, बीबी भानी दे घर वाला सी धन गुरु रामदास पातशाह जी भाई जेठा जी। जिदन थड़े बनाने की गल आई, तीजे दिन बाद भाई रामे ने धन गुरु अमरदास साहब जी नूं मुखातब होकर आख्या सी, गुरु अमरदास जी मैं थड़ा उवें बनाया जिवें तुसीं मैनूं कह के गए सो।
मैं तो पहले दिन भी एवं बनाया सी, दूजे दिन भी एवं बनाया, तीजे दिन भी उवें बनाया, पर सच है बजुर्ग हो गए हो तुसी, जो तुसी कल कह के गए हो तुहानू अज भुल जांदा है। हालांकि मैं कहना भावें किन्नी निमरता विच बचन आखे होण, पर सच विच धन गुरु अमरदास पातशाह जी की निरादरी वाले तो बोल सन। उन्होंने जो इन्नी गल आखी, धन गुरु अमरदास साहब जी भाई जेठा नूं कहंदे ने, जेठिया थड़ा नहीं बनया सही। भाई जेठा जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सतगुरु जी मैं अलपग जीव हाँ, तुसी कह के जाते हो मैं भुल जाना, सतगुरु मैं कल फिर यतन करांगा। इतिहास लिखदा 7 दिन तक लगातार भाई जेठा जी थड़ा बनाते रहे, ते 7वें दिन धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने फिर आख्या भाई जेठे नूं, जेठिया थड़ा फिर सही नहीं बनया। ते भाई जेठा जी पैरों में डिग पे कहन लगे, सतगुरु जी तुसी समर्थ हो मेरे दातार पिता जी, मेरे कोलों मत नहीं, तुसी कह के जाते हो सतगुरु मैं भुल जाना, मैं तुहाड़ियां उम्मीदां ते खरा नहीं उतरदा पिया, सतगुरु रहमत करो, मैनू अपने चरणों में जोड़ के बख्श लो। साहब धन गुरु अमरदास पातशाह जी उस वक्त गुरु रामदास पातशाह भाई जेठे नूं अपनी गलवकड़ी विच लैंदे ने। असल विच गुरु अमरदास जी कोई बाहर का थड़ा थोड़ा बना रहे सन, वो तो वेख रहे सन भी हिरदे का थड़ा किंदा मजबूत है, क्योंकि साध संगत जिस हिरदे दे विच गुरु दे प्रति प्यार नहीं होएगा, जिस हिरदे दे विच गुरु दे प्रति भरोसा नहीं होएगा, जिस हिरदे दे विच गुरु दे प्रति अकीदा नहीं होएगा, उस हिरदे ते गुरु कदी निवास नहीं जे करेगा। तुसीं सतगुर की पावन बाणी पढ़दे हो, पातशाह जी कहंदे ने मालक परमात्मा उस हिरदे दे अंदर निवास करदा है जिस हिरदे दे अंदर मालक परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दे अकॉर्डिंग जिंदे हिरदे दी सेजा तैयार हो जाती है। उमकियो हियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखो प्रे जाई। इसे पावन शब्द विच धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी कहंदे ने, एका सेज विशी तन कंता, धन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो धन मतवंता, पिर जाग धन जागै जे पिर बोलंता। ये जाग जाए जिंदे कोलों आवाज़ इनके हिरदे विच पहुँच जाए। सच असीं कन्नां नाल सारे सुनने पर हिरदे तक पहुँचती कोई नहीं। जिदन कन्नां नाल सुनिया हिरदे तक पहुँच जाएगा, धन गुरु रामदास पातशाह जी की तरह उस दिन इन्हां बख्शिशां दे पात्र असीं भी बन जावांगे। गुरु रामदास साहब जी के जीवन के विचों एक गल पल्ले बन के जाइए। अज दे दिन जो मेरे सतगुर ने कृपा की है, धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने जिदन कोई सेवा विच गुरु के हुक्म नूं कमान विच जुड़ जाए, मैं जिथों बचन आरंभ किए सन, शेक्सपीयर के उस नावल की गल बिल्कुल ही, वो कहता तेरा डंडा तेरे हाथ विच तेरे हुक्म विच है, पर मैं तेरे हुक्म विच नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं, मेरा मालक इधर खड़ा है, मैं अपने मालक का नौकर हाँ। सच विच साध संगत साडा मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिदन इहदे सेवक बन जावांगे ना, ते सेवक बनन लई सिंपल जी एक गल साहब ने कही, 100 सेवक हर आखिए जो हर रखे उर धार। वो सेवक है जिहड़ा परमात्मा नूं अपने हिरदे विच धार लेगा। ध्यान देना, सेवक वो नहीं सलाम जवाब दोवें करे मुढ़ो कुत्था जाए। सतगुर कहते हैं सेवक वो नहीं जिहड़ा सलाम भी करता है ते अगों जवाब भी देंदा है। असीं ते इत्थे जी रहा ना साध संगत, सलामां भी करने आ, 3 दिन घर विच अखंड पाठ कराया, सलामां कीतियां, पर ध्यान देना जिदन चौथे दिन कमान की गल है, क्योंकि ये तो प्रीख्या ते कमाई ते प्रैक्टिकल जीवन विच है ना। हुण जिहड़ी साडी परीक्षा होनी वो तो प्रैक्टिकल जीवन विच होनी है, वो गुरुद्वारे बैठ के तो नहीं होनी ना जी। इत्थे ते असीं सीखण आए हैं। बच्चा स्कूल विचों सिੱਖਦਾ है, सिੱखे होए नूं समाज विच प्रैक्टिकल तौर ते वरतदा है। जिहड़ा पढ़िया लिखिया सियाणा होएगा, उनकी बोली उनके चाल उनकी करनी बाहर समाज विच विचरदिया होया लोकां दे सामने झलकदी है। ते जिहड़ा नहीं व्यवहार तो वेख के असीं कह दिंदे तू अनपढ़ पढ़िया लिखिया नहीं, इन्ना मतलब पता लग गया उनके व्यवहार तो भी ये बंदा कित्थे खड़ा होया है। ये जो असीं गुरु के चरणों विचों सीखने आ, ये बाहर जाके प्रगट होंदा है प्रैक्टिकल रूप विच। ते जिथे असीं परीक्षा देनी उत्थे असीं सारे फेल हो गए। 3 दिन गुरु नूं सलामां कर लियां, पर जिदन परीक्षा आई उदन पिछे हो गए, उदन फेल हो गए। मेरे सतगुरु जी कहते हैं किवें निबड़ेगा, किवें पूर्ण तौर पर गुरु नाल जुड़ेगा। इस कमाई लई जरूरी है
जो गुरु कहता है उन्होंने अपने जीवन विच भला करके मान लीए। गुरु रामदास साहब जी के बचन पढ़ो, अखीर विच सतगुरु गुरु अमरदास गुरु रामदास साहब जी के नाम अमृत बचनों को आप जीवन विच वसा के जाइए, जिन्हों साहब कहते हैं हम अंध ले अंध बिखै बिखराते क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। हे गुरु के सिखा, गुरु की दसी हुई चाल, गुरु के दसे हुए उपदेश ते चल। जिदन गुरु के उपदेश ते चलांगे, अजे सानू भरोसा कोई नहीं माफ़ करे जे, अजे असीं कहने मुंदरियां साडा काम सवार देन, धागे तवीत साडा काम सवार देन, भरोसा थोड़ा सानू। देखो ये भरोसे दियां घड़ियां तो उदन ही आंदियां ने, उदन ही प्रीख्या होंदी जिदन प्रैक्टिकल दुख सुख जीवन विच वापरदे ने, पता तो उदन ही लगता है। मैं फिर बेनती कर दिया, बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने बड़ी वड्डी कालना काली, बहुत जिदन उन्होंने केसरी निशान सरहंद की धरती ते झुलाया होएगा, सच विच उदन किन्नियां ने सोहले गाए होणगे बाबा बंदा सिंह बहादुर दे, उनकी सिर सलाह की होएगी। पर सच विच जिदन प्रीख्या की कड़ी सब तो वड्डी आई, उनका 3.5 साल का पुत्र अजय सिंह, जिंदा कलेजा कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह विच पाया गया। तो जे बाबा बंदा सिंह बहादुर उदन ही कह देंगे भी कौन पुत मरवाए जी, कोई गल नहीं, जो कहते हो मैं प्रवान कर लेना। सच विच उस दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर का रुतबा सिखां दे अंदर लुकाई दे अंदर होर उच्चा हो गया। जिदन प्रैक्टिकल आया तो उन्होंने उसनूं कमा लिया अपने जीवन में। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते हैं इनू समझ अपने जीवन में, जे गुरु की अधीनगी विच रहेगा, जिन्होंने भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं छाड़ अहंकार छाड़ होए गुरु मार्ग में, कब हूँ कह दया के दयाल भगतार है। उनकी दया का पता कोई नहीं, वो किदों तेरे ते दयालता वरता दे, बस तू अपना अहंकार छड़ के उनके दर का भौरा बन जा। जिदन अहंकार छड़ देगा उदन सब कुछ कमा लेगा। तो जे आया ही हंकारी दाता बन के, असी सच विच मंगण गुरु को आने तो मंगण आन लग्या भी दाते बन के आने। मैं कल भी जिक्र किया सी, विचार करदे महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन की घटना, वो मुल्तान की जंग ते गए तो राह विच जांदिया ना गुरुद्वारा सी, किसी ने कहा भी इस थां ते जिहड़े सेवा करते हैं ना उन्हां दा नाम भाई बुद्धू साहब है। वो बड़ी करनी वाले ने, बड़े उच्ची जीवन जुगत उस गुरसिख की। तो महाराजा रणजीत सिंह उस थां ते अंदर चले गए, कहते भी चलो मुल्तान की जंग जितन जा रहे हैं तो आप मत्था गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुका के चलीए। अंदर गए तो जाके कहते ने जिहड़ा सेवा विच लगा सी सिख उन्होंने जाके कहते ने भी भलिया इत्थे भाई बुद्धू साहब ने, मैं उन्होंने मिलना है। तो भाई बुद्धू साहब जी ने बांह फड़ी तो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के चरणों में महाराजा रणजीत सिंह नूं लिजा के खड़ा कर दिता। कह लगे बुद्धू मैं हाँ तो साई बेआ जिंदे चरणों में तू खड़ा है। भाई बुद्धू जी नूं कहन लगे भी मैं मुल्तान की जंग ते जा रहा तो अरदास करो गुरु के चरणों में। भाई बुद्धू ने गल विच पल्ला पाया तो अरदास की भी मेरे मालक है तो बादशाह महाराजा रणजीत सिंह कहते ने इन्हां नूं, पर तेरे दर दा भिखारी है, तेरे चरणों दे विच भीख मंगण आया, जंग ते जा रहा जित के आवे, इनू फतेह आबी देना। मालिक ने कृपा की, मुल्तान की जंग जित के महाराजा रणजीत सिंह वापस आए। इसे स्थान पर फिर अंदर आए शीश झुका, तो जो अंदर मत्था टेकिया शीश झुकाया तो भाई बुद्धू जी नूं कहंदे ने भाई बुद्धू जी दसो मुल्तान की जंग तुहाडी अरदास पूरी हुई, मैं जित के आया, हुण दसो तुहानूं की चाहिदा है। जमीन जायदाद कुछ तुहाडे नां इस थां दे नां लाना है, तुहानूं कुछ तुहाडे नां कुछ लाना है। कोई मेरे वर्गा हुंदा ते मंग लैंदा, क्योंकि साडी ते सुरत इत्थे खड़ी हुई है ना। साध संगत अरदास करिए सतगुर दे चरनां विच कि सेवा करदिआं सुरत किते इस तो अगे चली जाए। पर साडा संसार का सिस्टम ऐसा बन गया ना कि साध संगत असी ते सोच के बैठे हैं भी नहीं गुरु के दर ते सेवा करने वाला सारी जिंदगी मंगता ही होना चाहिए है, वो इस तो उठ के कभी सोचे ही ना। पर हर कोई भाई बुद्धू वर्गी सुरत वाला तो नहीं बन सकता ना। हुण भाई बुद्धू ने एक ही गल आखी, कहन लगे सतगुर तेरे दर दा मंगता है, कल मंगता बन के आया सी, अज सतगुर राजा बन के आके खड़ा है।
इनू अपने दर तो इन्नी सुमत दे भी इनू समझ आ जाए भी दाता एको ही है, बाकी सारे ही मंगते ने। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। उस दिन समझ आ गई महाराजा रणजीत सिंह नू। ਉਹ सच विच गुरमुखो ये भी बचन कहण दे लई वो भी एक बात उस दे सामने जिंदे जिंदे हुक्म विच पूरा हिंदुस्तान जिहड़ा उस वक्त पंजाब का पूरा खिता जिंदे हुक्म विच चलदा सी, दिल्ली तो लैके ते लाहौर तक जिंदा हुक्म चलदा होवे। सच विच बड़ा वड्डा जिगरा सी भाई बुद्धू साहब जी का, जिन्हां ने एडी वड्डी गल भी कह दी। पर सच है असी सारे उनके दर ते मंगते हाँ। धन गुरु रामदास पातशाह जी की तरह, भाई जेठे की तरह जिदन सतगुर के हुक्म नूं कमावांगे उस दिन सच विच सतगुर के चरणों में प्रवान हो जावांगे। ते अज दे दिन धन गुरु रामदास पातशाह जी गोइंदवाल साहब जी की धरती ते, क्योंकि 2 दिन पहला अमृतसर साहब की धरती ते धन गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरता गद्दी की जिम्मेवारी धन गुरु अर्जुन देव पातशाह अपने छोटे सपुत्र नूं दित्ती। तो फिर सतगुरु पातशाह जी ने एक रात उत्थे बिताई तो धन गुरु अर्जुन साहब जी ने आख्या सानू हुण गोइंदवाल लै जाओ। गोइंदवाल साहब जी की धरती ते गए थे, रात रुके ने। सवेरे संगत विच बैठ के पाठ भी किया, कीर्तन भी सुनिया। पर सतगुरु गुरु रामदास जी ने फिर सारी संगत के सामने हाथ जोड़ के आख्या कि संगत जी हुण साडा समा आ गया है कि असीं उस करते के चरणों में लीन होण जा रहे हैं। सारिया सिख संगतां दे हिरदियां विच वैराग सी, पर एको ही गल आखी गुरु रामदास साहब जी ने कि अज तो बाद गुरु अर्जुन देव साहब जी के हर हुक्म नूं तुसीं प्रवान करना है, क्योंकि गुरु नानक साहब जी की जोत गुरु अर्जुन साहब जी के चरणों अंदर हिरदे विच हुण टिक गई है। इस करके अज तो बाद तुसीं गुरु अर्जुन साहब जी के हुक्म नूं प्रवान करना है। और धन गुरु रामदास साहब जी 1581 ईस्वी 1 सितंबर नूं अज दे दिन गोइंदवाल साहब जी की धरती ते ज्योति जोत समाए सन। और दूसरा दिहाड़ा अज धन गुरु ग्रंथ साहब जी का संपूर्णता दिवस है। अज दे दिन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने दमदमा साहब जी की धरती ते धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की संपादना जदों दोबारा करवाई, धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की अमृत बाणी नूं ऐड किया नाल, क्योंकि 5 गुरु साहबाना की बाणी पहलों दर्ज सी, 15 भगतां की बाणी दर्ज सी, पट साहबाना की बाणी दर्ज सी, गुरसिखां की बाणी दर्ज सी। पर सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कृपा की, भाई मनी सिंह जी उन्हां दी सेवा लगी। वो अपने हत्थां नाल जिवें गुरु अर्जुन साहब जी के वक्त भाई गुरदास जी लिखते सन, इस तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने लिखण की सेवा जिहड़ी है, लिखाई की सेवा है, वो भाई मनी सिंह जी की लाई। बाबा दीप सिंह जी उन्हां दी सेवा शाही दवात कलम ते लगी। सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे काफ़ी लम्मा समा जिहड़ा है वो धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की पावन संपूर्णता दे लई गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नूं ऐड करके संपूर्णता अज दे दिन की। और इस तो बाद फिर सतगुरां ने सारी संगत दे विच पातशाह जी ने कई दिन कई महीनों का समा दसिया जाता है लगा कि सतगुरु ने पूरे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दीयां विचारां संगतां दे विच करके सुणाइयां। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने गुरुद्वारा लिखनसर साहब जिथे अज दे दिन सतगुरां ने संपूर्णता की सी, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की अज सतगुरां दा संपूर्णता दिवस है। 1706 ईस्वी नूं संपूर्णता हुई सी ते 1708 ईस्वी नूं धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी नूं गुरता गद्दी जिहड़ी है वो नांदेड़ की धरती ते दित्ती गई सी। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी जिन्हां दे ये 2 दिहाड़े जिन्होंने असीं अज चेते करन लई गुरु चरणों में जुड़ बैठे हाँ। अरदास करिए सतगुरु मेहरमत करन अपने चरणों विचों अमृत बाणी नूं समझण दी दात सानूं सबनां नूं बख्शिश करन। होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा।